Hello, hey, hi everyone, good morning. And today's session is all about English grammar in use. Yes, I am going to review a book which has been written by Raymond Murphy. Alright, so that book I am going to cover up today. Many units would be there, and this book is for beginners के लिए भी है, intermediate and advanced levels के लिए भी है. So let's see what we have in this book. This book we are going to cover up that this grammar in use. So in any way it is going to contribute in your spoken and for your exams and all too. Here we have content. All right, content we have here may have to many things to cover up. Okay, we can see that later thoroughly. For the time being, let's go with English grammar in use. Here we have. So the first unit हम cover करेंगे और मैं like the name of this channel is Easy Advanced English. I am making advanced English easier to you guys, very easier. Unit 1, present continuous. I am doing. How would it make sense into practically? Let's see. I'm doing. So Sarah is in her car. Okay, let's assume just मान लो like meanwhile you are going to learn a lot, a vast chunk of vocabs from me as well. मैं बहुत अच्छे अच्छे vocabularies use करूँगा while explaining the lessons. So keep listening carefully to me. You have to surround your environment, and you have to stick with one person, one guy on a YouTube or any other social media. Then you are going to grab that person a lot. बहुत तुम उससे सीखोगे एक ही पर्सन से if you are going to follow that person. Okay, if you are switching between YouTube channels, that may confuse you and create a sort of barrier in order to recall all information precisely. वो information तुम precisely फिर recall नहीं कर पाओगे क्योंकि हमें एक reference चाहिए होता है कि हमने ये point कहाँ सीखा था. Why I'm telling you these all points? Because I am a psychologist too, and we know how a learning brain performs and how fastly, how smoothly we can make any learning brain perfect with their learning. Okay guys, so let's do it. Study this example situation. Sarah is in her car. वो अपने कार में है. She is on her way to work. Okay, she is on her way to work. वो अपने रास्ते में है जाने के लिए. She is driving to work. Here apostrophe s depicts, जिसे हम contractions बोलते हैं. तो कॉन्ट्रैक्शंस वही जो कि शॉर्ट में हेल्पिंग वर्ब जो जैसे इज है वो लिख देते हैं. और भी चीज़ें मैं बहुत कंटेंट यहाँ पे डालूँगा, बहुत वैल्यूबल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डायरेक्टली दे दूँगा. ओके, शी इज़ ड्राइविंग. तो वो ड्राइव कैसे? दिस मीन्स शी इज़ ड्राइविंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड. अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरी बहन अभी गाड़ी चला रही है. तो वो भी गाड़ी चला रही होगी अभी, वो राइट नाउ. मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ लेकिन वो गाड़ी चला रही होगी. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो एक्शन होते हैं जो हमारे बोलने के टाइम पर ही हो रहे होते हैं. ओके, इसे बेटर एक्सप्लेनेशन है कहीं. एम इज आर हम यूज़ करते हैं इसमें, और आई एन जी यूज़ करते हैं वर्ब के साथ. इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ओके, देख लो आई एन को हम कैसे लिखते हैं, आराम से देख लो. कॉन्ट्रैक्शन के साथ शॉर्ट फॉर्म में आई एम ड्राइविंग भी बोल दो. ही शी इट के साथ इज यूज हो जाएगा. ओके, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज प्लेइंग. तो ठीक है ना, हम इट भी यूज कर सकते हैं इंसानों के साथ. If we are not treating them completely as a human, if we are treating them as a working thing, तब हम it का यूज करते हैं. we you they के साथ हम are यूज करेंगे. ओके, is हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, प्रोनाउन के साथ यूज होता है, सिंगल लोगों के साथ यूज होता है.
ही शी इट में सिंगल है, इज लग गया। आर यूज होता है बहुत सारे लोगों के साथ, वी, यू, दे। ठीक है, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे याद रखना। यू हम एक आदमी के लिए भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ऑल टुगेदर वी हैव रिटन आर फॉर इट। आर हमने लिख दिया, यू के लिए यूज़ होगा। ओके, वी आर डूइंग, ओके, वी आर डूइंग सम वर्क। I am doing something. I started doing it and I haven't finished. I am in the middle of doing it. मैं बीच में हूँ, मैंने ख़त्म नहीं किया, अभी मैं कर ही रहा हूँ, वो बीच में ही है। प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइस, आई एम ट्राइंग टू वर्क। ठीक है ना, वो भी काम कर रहा है, कर रही है, तो लोग नॉइस कर रहे हैं, तभी उसने बोल दिया है प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइस, डोंट डिस्टर्ब मी। और फिर वो बच्चे बोलेंगे क्यों, वाई। अब वो बोलेगी बिकॉज आई एम वर्किंग, आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। नॉट आई, देखो यहाँ पे चलते हैं, नॉट आई तुम आई यूज़ नहीं करोगे, आई एम यूज़ करोगे। जो रूल्स थे वो हम इसमें अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। वेयर इज मार्क, ही इज़ हैविंग ए शार, नॉट ही हैज़ ए शार बट ही इज़ हैविंग ए शार, वो शार ले रहा है। लेट्स गो आउट नाउ। इट इज़ंट रेनिंग एनी मोर, अब बारिश नहीं हो रही है। नॉट इट डज नॉट रेन, नॉट इट डज नॉट रेन, हम डज नॉट रेन का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इट इज़ नॉट रेनिंग एनी मोर, वो बारिश नहीं हो रही है। हाउ इज़ योर न्यू जॉब, आर यू इंजॉइंग इट, क्या तुम इसे इंजॉय कर रहे हो अपने न्यू जॉब को। व्हाट इज़ ऑल दैट नॉइज, ओके, व्हाट इज़ गोइंग ऑन और व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या चल रहा है अभी। समटाइम्स द एक्शन इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि बोलने के टाइम पर नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टीव इज़ टॉकिंग टू ए फ्रेंड ऑन द फोन, ही सेज, स्टीव इज़ टॉकिंग टू ए फ्रेंड, वो दोस्त से बात कर रहा है फ़ोन पे, ही सेज, और वो क्या कहता है, आई एम रीडिंग ए रियली गुड बुक एट द मोमेंट, इट्स अबाउट ए मैन हु, ओके, आई एम रीडिंग ए रियली गुड बुक एट द मोमेंट। अभी तो वो फ़ोन से बात कर रहा है, राइट नाउ ही इज़ टॉकिंग टू ए फ़ोन, किताब तो नहीं पढ़ रहा है, बट ही इज़ सेइंग आई एम रीडिंग ए रियली गुड बुक एट द मोमेंट। अब देखो ये सेंटेंस कैसे यूज़ होगा। स्टीव सेज आई एम रीडिंग बट ही इज़ नॉट रीडिंग द बुक, this time of speaking, he means that he has started reading the book but he has not finished it yet. He is in the middle of reading it. उस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम वो किताब पढ़ रहा है, अब शायद 1-2 महीने पढ़ेगा, वो उसने शुरू कर दिया, प्रेजेंट की बात कर रहा है ना यार, आजकल ना मैं किताब पढ़ रहा हूँ, hey nowadays I am reading books, तो ऐसे भी ये यूज़ होगा। एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, आई एम इन टू इंग्लिश फॉर मैनी लॉन्ग, इट हैज़ बीन मोर देन डिकेड। मैं इंग्लिश को याद नहीं रखता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से। इसमें हमें समझना ही है कौन कैसे कब किस तरीके से बात कर रहा है, ओके। रूल्स कभी कभार कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं एज पर द सिचुएशन, बिकॉज अगेन इट्स नॉट ए सब्जेक्ट that we can finish up and give an exam of it, it's a language, इसका ना कोई एग्ज़ाम हो सकता है, I mean there cannot be always 100 marks, but yeah there can be the judgment हो सकती है कि हाँ वो उस लेवल का बोलता है, बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस, लेकिन यहाँ पे कभी एक्यूरेसी नहीं आएगी कि हाँ 100 में से 100 मार्क्स मिल गए। ऑब्वियसली ग्रामर के एस्पेक्ट से एक सिलेबस बनाया है मास्टर्स एक्सपर्ट्स ने कि हाँ इस पैरामीटर के हिसाब से चलो मार्क्स देते हैं, लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू जज दिस लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिवली इट्स नॉट पॉसिबल। ये लैंग्वेज है और ये लोग ही बनाते हैं अपने तरीके से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने लॉजिक से, ओके। तो हम हर एक लोग के लॉजिक को और उसके इन्फॉर्मेशन को, बात को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कंपेयर और कंप्लीट भी नहीं कर सकते। देन हाउ इट वर्क्स, some more examples. Kate wants to work in Italy, so she is learning. Okay, Kate wants to work in Italy, so she is learning Italian. Okay, वो इटालियन लर्न कर रही है बिकॉज वो इटली में काम करना चाहती है।
But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. बट शायद वो भी जो बोल रही है तब वो इटालियन नहीं सीख रही है, अभी तो बात कर रही है ना, लेकिन हाँ उसके वो डेली रूटीन में सॉरी गाइस, वो लेकिन उसके डेली रूटीन में शामिल है, आजकल वो कर रही है. यू कैन यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विथ टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, एटसेट्रा. ओके, टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, मतलब हाँ देखो दिस ईयर ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं. यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, तुम हार्ड आज तुम देखो, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, वो दिन भर ही हार्ड काम कर रहा है. यस, आई हैव अ लॉट ऑफ टू डू, आई हैव अ लॉट टू डू, मेरे पास बहुत ही करने को है. द कंपनी आई वर्क फॉर इजंट डूइंग सो वेल दिस ईयर, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ इजंट डूइंग सो वेल दिस ईयर, इस साल वो अच्छे से काम नहीं कर रही है. तो इसके बोलते वक्त तो वो काम वाकई नहीं कर रही है, लेकिन पूरे साल भर भी वो काम नहीं कर रही है कंपनी, राइट. मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऐसे होता है जो अभी चल रहा होता है, चाहे एकदम करंटली तुम बोल रहे हो तब चल रहा होता है, चाहे वो पूरे एक लंबे टाइम पीरियड के लिए चल रहा होता है, ठीक है ना. जैसे कि कोरोना वायरस आजकल बहुत फैल रहा है, कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग अ लॉट, तो फैल रहा है, राइट. सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर दिया हमने इसमें. अब है डी पॉइंट. We use the present continuous when we talk about a change that has started to happen. We often use these verbs in this way. देखो, getting, becoming, changing, improving, starting, ये verbs है और इनका कैसे यूज़ है वो देखते हैं. इंक्रीजिंग, राइजिंग, फॉलिंग, ग्रोइंग. इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या तुम्हारा इंग्लिश बेटर हो रहा है. नॉट डज योर इंग्लिश गेट बेटर, हम यहाँ पे डज यूज़ नहीं कर रहे हैं. ING लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. एक छोटी सी ट्रिक ये भी याद रखो कि वैसे तो कुछ टेंसेज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जिसमें कि डज से भी सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक है, ज़्यादा सेंटेंसेस इसमें ING ही कैरी करते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. ओके, नॉट इंक्रीज, इंक्रीजिंग. At first I did not like my job but I am starting to enjoy it now. स्टार्टिंग में मैंने अपना जॉब पसंद नहीं किया था, लेकिन अब मैं पसंद कर रहा हूँ. एक्सरसाइज है, कवर अप करते हैं एंड देन सेशन गेट एंड. ओके, यूनिट 1 रेमंड मर्फी का याद रखना. व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, बहुत अच्छे से, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें कंपेयर करके बताऊँगा, जो कि एक ह्यूमन ही बता सकता है. ना तुम AI से सीख पाओगे, ना तुम, नो वन कैन डू इट एक्सेप्ट ए परफेक्ट ट्यूटर. व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर, क्या हो रहा है इन पिक्चर्स में. चूज फ्रॉम दीज वर्ब्स. क्रॉस, हाइड, स्क्रैच, टेक, टाई, वेव. ओके, तो क्रॉस का मतलब क्रॉस करना, हाइड का मतलब छुपना, स्क्रैच का मतलब खुजाना, टेक का मतलब लेना, टाई का मतलब बांधना, वेव का मतलब वेव करना, जैसे कि हाथ हिलाना, बाय करना किसी को. शी इज़ टेकिंग अ पिक्चर, वो पिक्चर ले रही है, वो तुम्हारे सामने, जैसे तुम कभी घूमने गए और तुमने एक सामने लड़की को दिखा रहे हो, वो क्या कर रही है, वो तो पहाड़ों की पिक्चर्स ले रही है. शी इज़ टेकिंग अ पिक्चर. अब देखो, ही डैश ए शू लेस, बताओ क्या आंसर आएगा. शूलेस, शूलेस मतलब जूते के फीते वो बांध रहा है. ही इज टाइंग, ओके, ही इज टाइंग ए शूलेस. डैश द रोड, ही इज क्रॉसिंग द रोड, शी इज क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस कर रहा है. देखो कितना इजी है. चौथा देखो, हिज हेड, ही इज स्क्रैचिंग हिज हेड, वो अपने सिर को खुजा रहा है, स्क्रैच कर रहा है. ही इज स्क्रैचिंग हिज हेड, ये भी यूज हो गया. बिहाइंड अ ट्री, सो ऑप्शन में क्या है, हाइड. बिहाइंड अ ट्री छुपेगी ही, हाइड को भी ING लगा दो, हाइडिंग. शी इज़ हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री, वो पेड़ के पीछे छुप रही है, वो छुप रही है, देखो वो छुप रही है, वो जा रही है वहाँ पे. शी इज़ गोइंग टू द ट्री एंड शी इज़ नाउ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. अब वो झाँक रही है. शी इज़ पीपिंग बिहाइंड द ट्री. देखा, बहुत ईजी बन जाएगी. टू समबडी, दे आर वेविंग टू समबडी, दे आर दो लोग हैं तो दे मैंने यूज़ कर दिया. दे आर वेविंग, वेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, टू समबडी. The sentences on the right follow those on the left. Which sentences goes with which? The sentences on the right follows those on the left. Which sentences goes with each?
ओके, हमें कनेक्ट करने हैं। फर्स्ट F से कनेक्ट हुआ, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम ट्राइंग टू वर्क। ओके, ऐसे ही हमने यूज़ करना है। चलो करते हैं। वी नीड टू लीव सून, इट्स स्टार्टिंग टू रेन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। वी नीड टू लीव सून, हमें ज़रूरत है जल्दी निकलने की। इट्स स्टार्टिंग टू रेन, बारिश हो रही है। आई डोंट हैव एनी वेयर टू लीव राइट नाउ, आई डोंट हैव एनी वेयर टू लीव राइट नाउ। I don't have anywhere to leave right now. They are trying to sell it. I don't have anywhere to leave it now. मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने की, because they are trying to sell it. वो उसे बेचना चाह रहे हैं, उसके अपार्टमेंट को. I need to eat something soon. I am getting hungry. Okay, देखो, I need to eat something soon. मुझे कुछ जल्दी खाना है. तो yes, I am feeling hungry. मुझे भूख लग रही है. I am getting hungry. तो इस तरीके से यू हैव टू कवर इट अप। इस एक्सरसाइज को आप कवर कर लेना बाकी के। राइट क्वेश्चन, यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। व्हाट इज ऑल दैट नॉइज, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू क्राइंग, वेयर इज योर मदर, इज शी वर्किंग टुडे। ओके, क्वेश्चंस यूज करना है। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, what were you doing these days, were you doing what are you doing these days? Okay, what are you doing these days? Amy is a student. Is she studying? Okay, so that's how you can cover up. Put the verb into correct form. Positive, I am doing, etc., or negative, I am doing, etc. Okay, this is it. Please don't make so much noise, I'm trying to work. You can turn off the radio, I'm listening. I'm not listening to it. Okay, ऐसे आप कवर कर लो. Andrew started evening classes recently. He is learning Japanese. आपको यहाँ पे लॉजिकली कनेक्ट करना है. Andrew started evening classes recently. उसने इवनिंग क्लासेस रिसेंटली स्टार्ट कर दी है. क्यों? बिकॉज ही इज़ लर्निंग जापानीज़, क्योंकि वो जापानीज़ सीख रहा है. ठीक है, लॉजिकली मैंने रूल बता दिए हैं. आईएनजी कैसे यूज़ होगा. नेक्स्ट चैप्टर वी विल अबाउट प्रेजेंट सिंपल वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन. बट दिस इज़ इट ऑफ द सेशन. Okay guys, thank you very much for your time and see you for the next time. Be tuned, because I will bring many spoken English videos where I will have where I will do conversation with learners as well, and at the same time deliver many more contents free to you. Okay, and this video is just for educational purpose. Thank you.